Respected Chief Guest, Principal Chief Commissioner of Income Tax, Satish sir. The first speaker for our National Tax Convention, Dr. Girish Ahuja sir. Chairman of the Ahmedabad branch, Nirav bhai. Respected Central Council member, Purushottam sir. Secretary of the branch, Samir bhai. Vice Chairman in absentia, Rinkesh bhai. Treasurer, Sahil bhai. And my management committee members, Abhinav bhai, Shikha ma'am, Sunit bhai. The next speaker, Rakesh Gupta sir. Galaxy of past chairmen of Ahmedabad branch as well as Anand branch and all the dignitaries on and off the dais. We begin the two-day conference on direct taxes. I would like to have a huge round of applause for our chief guest as well as the speaker. And I welcome all the participants. I'm very sure the two-day enriching moments which we are going to have and the knowledge which we are going to seek is going to be very, very encouraging as well as beautiful for all of us. I invite the coordinators of the first, you can say, session as well as the chairman to begin the conference, and I invite Snehal bhai to give the introduction of the first speaker, Dr. Girish Ahuja sir. I'm sure he does not require introduction among us, but still, as a protocol, I would request Snehal bhai to give introduction of Dr. Girish Ahuja sir. Good morning, everyone. I have been provided one of the most complex task of introducing a living legend, CA Dr. Girish Ahuja sir, who does not require any introduction. He is fondly referred to as tax guru amongst our fraternity. But for the formalities, I would have to complete his introduction. So, CA Dr. Girish Ahuja sir has been a graduate and a postgraduate and has completed his doctorate from the Delhi University. Twice he has been a rank holder at the ICAI examinations. He has been a practicing chartered accountant, pioneering in the field of direct tax. And he has been an independent director at many famous listed companies. He has been nominated by the government of India to be a member of the high-powered task force designed to draft the new Income Tax Act. And also, he has been a part of the committee to address the issues that are being faced in the field of direct tax by the government of India or the CBDT. He has authored over 25 books for students as well as professionals, and he has delivered a record number of 3,200 lectures at various professional bodies. I request all the members to welcome Girish Ahuja sir with a huge round of applause. Sir, now I request to deliver a session on the most debated and the most discussed topic among the professional fraternity, that is the overview of Income Tax Bill 2025. Yeah. I invite Chairman of Ahmedabad branch and respected CCM sir to felicitate Dr. Girish Ahuja sir. अरे वो तो चले गए आप पहले मैंने नाम इनका पहले इसलिए नहीं था. They were sitting on the dais. Now I can name them later. Earlier sitting on the dais, of course, the Directors Committee Chairman of the Ahmedabad, CA Jatin Trivedi ji, Sahil Gala, the Treasurer of the branch, Snehal, Vishal Mehta ji, and sitting in front of me, of course, now everybody is sitting in front of me, the Honorable Principal Chief Commissioner of Income Tax, Satish Sharma ji,
CA Parshottam Khandelwal ji, Central Council member, a very energetic and dedicated member, of course, you know, you have sent to the institute. CA Neerav Agarwal ji, Chairman of the Ahmedabad branch. Rinkesh is not here. Sabir Chaudhary ji, the Secretary of the branch. Gala Asad Sahil, I have already named. Madam CA Sikha Agarwal ji, Vikasa Chairperson. Jitendra Trivedi of DTCN, other managing member, and also my friend, ex-ITT member, Mr. Rakesh Gupta, and husband of the present ITT member. दोनों को होगा ना बोलना गुप्ता जी. The other dignitaries members, and I have already, I always see these Brahmkumaris CAs, they also come and attend the function, and it is always there, they are also there. Let me tell you some, I allotted the topic of Income Tax Bill 2025. I remember when we were redrafting the law way back in 2017-18, we were given that assignment, and at that particular point of time, we had submitted the bill which contained only 274 sections. Only 274, which is 536, no doubt, I'll tell you. But at that time, the problem was, who will train all the officers of the government, and what will happen to the judicial decisions which have over the year been decided? What will happen to them? Because the entire text and whether the format was changed in that bill. Very good attempt has been done now also. I'm not denying that fact. The attempt is only to simplify the language. British language converted into Indian language, of course, Indian English. Notwithstanding, gone, irrespective of taken in. Somewhere where it is where they have brought it if. You know this Income Tax Act. The section may go to 12 lines, 15 lines, then there is a section, then subsection, then we have clause, then subclause, then you have item, then sub-item, then proviso, provided that, provided further that, provided also that, जितने मर्जी also डालते जाइए, explanation 1, explanation 2, ये सारा कुछ था. तब भी 298 section थे. 298 नहीं थे, but if you look up and find out how many sections are there in Income Tax Act, there are 298 sections, which is absolutely wrong. Which is absolutely wrong. There were around 600 sections there. 22 to 27 is house property, 28 to 44 is business, 45 to 55 capital gain, 56 to 59, 60 to... They were all allotted section. If you had to bring any change in business chapter, what could you do? 44 capital A, 44 double A, 44 AB, 44 AD, 44 AE, भूल गए ADA, वो बीच में आ गया ADA, 44 B, 44 double B, BBA, BBC, BBD, BB सब आ गए वहाँ तक कहाँ पहुँचा? 44 DA, DB, 35, 35A, 35AB, 35AC, 35AD, 35E, ये सब सेक्शन ही तो हैं. 111A, 112, 112A, 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115AE, 115AF, 150G, 150, सब सेक्शन ही तो है. 115B, 115BA, 115B double A, BAB, BAC, BAD, BAB, ये सब सेक्शन ही तो है. फिर BB, BBA, Triple B, BBC, BBD, BBE, BBE, BBF, BBG, BBH, BBI, BBJ, ये सब सेक्शन है सर. ऑल सेक्शंस. सर मुझे याद है टनेज टैक्स लाना था, आपको बता रहा हूँ. 115W तक चूज हो गया था, तो VWX W तो दे दिया था, पर उसको आया था फ्रिंज बेनिफिट को. अब कैसे लाए? 28 सेक्शन थे. तो कोई बात नहीं, टनेज टैक्स में टनेज टैक्स सेक्शंस 115V, 115VA, 115VB, VC, VD, Z आ गया, खत्म नहीं हुआ. कहते कोई बात नहीं, VZA, VZB, VZC, ये सब सेक्शंस हैं सर हमारे. More than 600 sections. और sometimes I used to say अपने CA friends को भी, circle को भी, students को भी, kindly read one section every day. Nobody wants to read the act. ये समझ में नहीं आता सर. I said, but read one section.
4 hours के बाद उसका बेचारे का फ़ोन आ गया, सर आई हैव रेड 1 सेक्शन, इट टुक मी 4 hours. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कहता लास्ट में लिखा था इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2009-10. हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सेक्शन है कि ख़त्म हो चुका है. यही तो मैंने कहा आगे से पढ़ना हो ना, सी द लास्ट लाइन और द फर्स्ट लाइन. या तो फर्स्ट लाइन में होगा बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट, या लास्ट लाइन में होगा. तो ये प्रॉब्लम थी हमारी कि वी नेवर न्यू. सो दे अबाउट 76 odd which have become inoperative. ATHH, ATHHA, ATHHB, ATHSC, ATHSD, ATHSE, ये सब सेक्शन ही तो थे, but they had become inoperative. So they have been removed. They have been omitted from there. And every section which has capital has been allotted a number now. Every section has been allotted a number. So therefore there is no capital A, capital B or something like that. सबको section मिल गया. 536 sections हो गए, 16 proviso हो गए. मैंने आगे पूछा, आपने बिजनेस को दे दिया 26 to 66, 67 कैपिटल गेन, उससे पहले 25 तक हाउस प्रॉपर्टी. हम लोग तो लूप होल तो ढूंढेंगे, फिर नया सेक्शन लाना होगा तो भी तो ए ही लाएंगे, और कोई तरीका तो है ही नहीं. तब आप ए ही डालेंगे उसमें. सो पुराने ए बी खत्म, कैपिटल नए ए बी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे हम. पहले एक बार लॉ बन जाए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई किया है. आई एम नॉट डिनाइंग लैंग्वेज इज, you know, sometimes a section is of 12 lines and comma may be after 6 lines. तो क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया. हमारी किताबों में ब्रेक ही होता था, हमारी रोजी मार दी उन्होंने, क्योंकि ब्रेक करते थे हम भी, उस सेक्टर्स को ब्रेक करके लिखते थे. दैट हैज बीन डन. यू हैव सीन रेडी रेकनर, TDS एट ए ग्लांस होता था ना हर एक में, वो भी इन्होंने कर दिया TDS एट ए ग्लांस. 392 given for salary and 393 only one section for TDS or all other, only one section 393. एक टेबल बन गई वही वाली 193, 194, 194A, 194B, 194 जितने भी सेक्शन थे एक टेबल में आ गए. With all those sections are there in 393. TCS is in 394. These sections are only one. Done. Compliances or certificates in 395. Compliances in 3. गलत नहीं कह रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा. आजकल मैं क्रिटिसाइज वैसे भी नहीं करता. जमाना मेरा बदल गया. किसी जमाने में मैं सिर्फ क्रिटिसाइज ही करता था. जब से गवर्नमेंट ने मुझे बीच में मिलाया, थोड़ी सी तो मेरी होना ही चाहिए गवर्नमेंट के साइड. मैं क्रिटिसाइज कम करता हूँ, शुगर कोटेड में करता हूँ, लेकिन करूँगा जहाँ जरूरत पड़ेगी. लेकिन बट आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज. ठीक है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है. सबसे बड़ा चेंज तो वही है कि वी ऑलवेज कंफ्यूज विद प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. चालान भरते हुए गलती होती थी. प्रीवियस ईयर भर दो या असेसमेंट ईयर भर दो. नाउ देयर इज ओनली 1 year, टैक्स ईयर. सो सिंप्लीफाइड इन दैट वे. Language simplified to a great extent. You may commit a mistake. That's why select committee was there. We also have presented, institute has presented so many things. They had gone there because only members were allowed to go, Miss Council member. They went there and presented their case and they were duly heard. I'm not denying that fact. And I'm told, हमारे चीफ कमिश्नर साहब बैठे, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर साहब, he said the gentleman who is the chairperson of that committee is really a learned man. हम learned उसको मानते हैं जो दूसरों की बात भी सुने, सिर्फ अपनी नहीं चलाए. So वो सुनते हैं और बातें कर भी रहे हैं. And they are discussing with the department, regularly meeting the department heads for that reason. So that is a good thing and I know. लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ है. हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर साहब बैठे हैं. ठीक है, 11, 12, 13 एक जगह होता था, 115 BBI एक जगह होता था, 164 एक जगह होता था, 115 BBC एक जगह होता था, 115 TD एग्जिट टैक्स कई अलग अलग जगह पे थे. Am I right? They have been brought in one part, that is 332 to 355 sections. सब कुछ वहाँ ले आए.
A new concept of specified income, regular income, residual income, जब देखेंगे तो अच्छा लगेगा, समझने में आसान लगेगा. 2 chapters nobody knew in income tax. चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे मैं हूँ, किसी को नहीं आते थे. एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एक चैरिटेबल ट्रस्ट. ट्रस्ट में किसी को कुछ नहीं आता था, चला रहे थे हम भी, और ये केस भी कर दिया करते थे राकेश जी जाकर. मैं कहता था ये गलत है, कहते क्या फर्क पड़ता है, उनको कौन सा आता है. So what I'm trying to explain, ये 2 chapter, but very lot of simplification is done in charitable trust. Lot of simplification. I'm not denying that fact. लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशन करते करते कईयों का नुकसान हो गया, वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोई फर्क नहीं. सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे को हुआ जिंदगी में. मैंने सोचा था इस उम्र में नुकसान होगा. मुझे एक एक सेक्शन याद है सर, सब सेक्शन याद है, क्लॉज याद है, प्रोवाइजो भी याद है. कभी कागज रखा नहीं है. अब क्या होगा, अब कागज रखूंगा तो मरूंगा, क्योंकि रेपुटेशन खराब होगी. और 536 को दोबारा नंबर याद करने पड़ेंगे. सर इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है. मेरी तो नींद हराम कर दी कि व्हाट टू डू एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड एवरीबडी सेज ही रिमेंबर्स ऑल सेक्शंस. नाउ आई हैव टू रिमेंबर फर्स्ट द नंबर ऑफ सेक्शन, देन बाद में उसका कंटेंट देखूंगा क्या हुआ. सो आई एम रियली फेड अप. लेकिन एक अच्छा हुआ, वो सेक्शन क्लाइंटों को भी याद हो गए थे सारे, और वो एकदम बोलते थे ये क्यों नहीं है. अब कम से कम हमसे पूछेंगे तो सही कौन सा सेक्शन है सर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज सबसे बढ़िया तरीका ये है, कीप ऑन योर टेबल कंपैरेटिव सेक्शंस, ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड, दोनों तरह के अवेलेबल हैं ऑन द साइट. पुट न्यू ओल्ड सेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग कंपेयरिंग न्यू सेक्शंस, एंड न्यू सेक्शंस हियर, ओल्ड सेक्शंस हियर. ईजी रहेगा, रोज टेबल पे रख कर सोच लो, काफ़ी फर्क पड़ेगा आपको. ये फर्क पड़ेगा, इससे आपको ईजी लगे. इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू एट लीस्ट गो इन टू. मैं तो अभी तक कंपनीज एक्ट 1956 याद है, 2013 याद नहीं रहता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न द ओल्ड सेक्शंस एंड देन लर्न द न्यू वन. ओके, let's see what happens. The challenge is there, and chartered accountants are meant for challenge, and they've already accepted that challenge. GST को अगर कोई successful कर सका इस country में, it is all chartered accountants, sir, I tell you. Everybody recognize the role of the chartered accountant, how hard they have worked. And similar is going to be the position of due bill also. There is absolutely nothing to worry. Now I'm coming to the bill now. In every act, section 1 is always short title, date of commencement, applicability. Even in 1961, section 1(1) says this act may be called Income Tax Act 1961. This is applicable to whole of India. Save as otherwise provided, it is applicable with effect from 1st April 1962. ये old था. नया भी वही है. Section 1. This act may be called Income Tax Act 2025. It is applicable to whole of India, section 1, subsection 2. 3, save as otherwise provided. Save as otherwise, unless some other date is given, it is applicable from 1st April 2026. वो assessment year की बात करता था, ये tax year की बात कर रहा है. So applicable from 1st April 2020. So there is absolutely no change in that. Section 2, you know that is definitions. Earlier we have section 2, clause 48. सेक्शन के 2 के बाद सबसेक्शन नहीं आते. कई सेक्शन है जहाँ सबसेक्शंस नहीं होते, क्लॉजेज होती है. 248 नहीं थे, 229A भी था, 229B भी था, 242A भी था, 222P भी. So there was a 222A, 220 था. But now there are section 2 clauses 112. 112 clauses there in section 2. 112. कुछ पीछे थी definitions. They've been brought in the beginning. So that it is being used everywhere, so, but they had put it there at the end on sub-chapters. They have been brought to the section 2. कुछ remains वहाँ है. जो zero coupon bond 248 था, आज section 2 clause 112 हो गया. जो agriculture income 21A होता था,
वो 2.5 हो गया। जो 2.7 SSC होता था वो 2.11 हो गया। जो 2.11 होता 2.72, जो कैपिटल एसेट 2.14 होता था वो 2.22 हो गया। जो चैरिटेबल पर्पस 2.22 होता था वो सेक्शन 2.23 हो गया है। हमें डिविडेंड याद रहता था 2.22, वो सेक्शन 2 क्लॉज 40 हो गया है। अब 2.22 याद नहीं है, 2 क्लॉज 40 हो गया है। हमें याद रहता था इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम, नाउ इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 49। पर्सन की डेफिनेशन याद रहती थी सेक्शन 2 क्लॉज 31, नाउ इट हैज बिकम 277। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन याद आता था 242A 242B, नाउ इट इज 201 एंड 202। 229A लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, वो है लेकिन 260 263। सो वी हैव टू रिकॉल चेंजेस ज़्यादा नहीं। एक बड़ी चेंज जो करी रिलेटिव की डेफिनेशन में, वो चेंज थी नहीं, वो क्लैरिफाई किया है। अगर आप देखिए रिलेटिव की डेफिनेशन होती थी अर्लियर, रिलेटिव मीन्स हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर। मैं सेक्शन 2 की डेफिनेशन कर रहा हूँ, 56 की नहीं कर रहा। हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। हर बार ये प्रॉब्लम आती थी, जो हमने भी अपने टाइम पे कहा कि हिंदू लॉ से लीनियल असेंडेंट कम्स फ्रॉम पेरेंट लीनियज, फादर लीनियज, मेल लीनियज, not the female lineage. Hindu law, somewhere it has said. But I used to say the Income Tax Act is not for Hindus. It may be for Muslim, it may be for Christian, सबके लिए है। तो मैटरनल आने चाहिए इसमें भी, लेकिन अब क्लैरिफाई कर दिया लीनियल असेंडेंट वेदर मैटरनल और पैटर्नल। तो कोई नई चीज़ नहीं थी, सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए। क्योंकि मैं अपनी गिफ्ट देता था, सर मेरी बेटियां हैं, तो मैं गिफ्ट देता था अपने बेटी के बेटे को या बेटी को, तो क्या कहता था, नो नो यू आर हिंदू, यू कांट गेट ए गिफ्ट यू कैन मेक ए गिफ्ट योर डॉटर बट नॉट टू द ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। आई सेड नो। हमने भी ये इशू किया था कि कर दो, तो वो क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों होंगे, और डिसेंडेंट भी मैटरनल और डिसेंडेंट दोनों होंगे। सो देयर इज नथिंग न्यू, it was there in the law, but it has been clarified so that there may not be a dispute, unnecessary dispute created in Hindu. अरे हिंदू लॉ में तो हमेशा डिस्प्यूट रहता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर सके कि बेटी का क्या हक है, बार बार चेंज करते थे, 5 बार चेंज किया। Their daughter 2009-2005 she became the co-partner, but whether she can be karta or she cannot be a karta, whether she has her own property before that or after that, so much problem had arisen in that Hindu law. तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लैरिफिकेशन कर दी गई है। सो दिस इज सेक्शन 2। अब प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट जो होता था 234, प्रीवियस ईयर इज प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3, 245 होता था। अब क्या आया, सेक्शन 3 टैक्स ईयर। अब आप प्रीवियस की डेफिनेशन सुनो, पहले क्या होती थी, प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। In case a new business is commenced or profession is set up or a new source of income has come into existence, the previous year will be a period starting from the date when the new business is commenced or profession is set up or a new source of income has come into existence and would end on 31st March next following. Simple कर दिया। Tax year, ये भी नहीं लिखा period of 12 months. Tax year is 12 months period. 12 months period of financial year commencing on 1st April. Simplify हो गया ना, 12 months period of a financial year commencing on 1st April. तो सिंप्लीफाई लैंग्वेज है, समझ आने वाली है, अदरवाइज तो ज़्यादा मुश्किल पड़ती। फिर वही उसको ब्रेक कर दिया। However, in case, second section, where a new business is commenced or profession is set up or a new source of income has come into existence, the tax year will be A, period starting from the date of commencement of business or profession is set up. B, a date when the new source of income has come into existence and would end by financial year. By the financial year. तो सिंप्लीफाई हो गया ना, और ऐसी चीज नहीं है कोई बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज किया है, इट हैज बीन सिंप्लीफाइड। दिस इज व्हाट हैज बीन डन इन सेक्शन 3।
कोई चेंज नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं माइनर चेंजेस हैं, बाकी सब वही है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है, घबराने की जरूरत नहीं है। चार्ज ऑफ प्रीवियस, चार्ज ऑफ डे, सेक्शन 4 होता था। थोड़ा सा वहां पर इशू चल रहा है, वहां लिखा था सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द राइट ऑफ टैक्स विल बी सेंट्रल एक्ट, उसकी वर्ड इन्होंने सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हटा दिया। बहुत क्रिटिसाइजम आ रहा है कि ये गलत है। मैंने कहा गलत नहीं है, आप जब सेक्शन 11 में जाओगे वहाँ चार्जिंग दे रखी है, लेकिन वो नहीं मानते, वो तो बात अलग है, वो दे रखे। फिर भी चलिए, ये सेक्शन 4 5 सेक्शन स्कोप ऑफ टोटल इनकम पहले भी था, अब भी है। क्या होता था स्कोप ऑफ टोटल इनकम? इन केस ऑफ ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द टोटल इनकम मीन income received in India, deemed to be received in India, income accrue or rise in India, deemed to, हमने पढ़ा था जब सीए कर रहे थे, अब थोड़ी याद है किसी, सभी ने पढ़ा था ये साल, received in India, deemed to receive India, accrue or rise in India, deemed to accrue or rise in India, accrue or rise outside India था। उसके बाद प्रोवाइजो दिया था, provided that, उसको नहीं किया, प्रोवाइजो नहीं, but in case of a not ordinary resident, the income which accrue or rise outside India shall be included only when it is from a business which is controlled from India or profession which is set up in India। ये कर दिया, वही है प्रोवाइजो कन्वर्टेड इनटू बट कंटिन्यूएशन में कर दिया। नॉन रेजिडेंट वही है, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, अक्रू और राइज इंडिया, डीम्ड टू अक्रू राइज इंडिया, ये वही है सब सेक्शन 3 कि इफ इट हैज बीन इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस देन इट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हेन इट इज रिसीव्ड। वही सेक्शन 5 है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम वही है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सामने दे दिया। अब आया सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले हम सेक्शन 6 में 6 तक पढ़ते थे। 6(1) रेजिडेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, 6(2) रेजिडेंशियल ऑफ HUF फर्म एनी अदर पर्सन, 6(3) रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, 6(4) और वो उधर है एनी अदर पर्सन, 6(5) इफ ही इज रेजिडेंट फॉर 1 ईयर ही विल बी रेजिडेंट फॉर ऑल अदर इनकम, एंड 6 इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये सेक्शन 6 होता था, अब बहुत बड़ा हो गया, 6(14) तक चला गया, क्योंकि उसमें एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइजो भी तो होते थे। पहले होता था 6(1) रेजिडेंट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल, अब आया 6(1) रेजिडेंशियल बाय पर्सन विल बी डिटरमिन्ड अंडर दिस सेक्शन, 6(1) खत्म। 6(2) रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। पहले लिखते थे क्या, इंडिविजुअल, जस्ट लैंग्वेज सुनना पुरानी, तब ये पता लगेगा अब सिंप्लीफाई क्या है। इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही हैज बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड अमाउंटिंग टू ऑल 182 days in the previous year, or in the 4 preceding previous year he has been in India for a period amounting to all 365 days or more, and in the relevant previous year 60 days or more। यही होता था सर, सिंप्लीफाई कर दिया। Individual said to be resident, individual is resident in India if he is in India for a total period of 182 days। और ये पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू ऑल, बात तो एक ही थी ना, सिंप्लीफाई कर दिया ना, ही इज इन इंडिया फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 days, सिंपली हो गया। एंड सेकेंड में आ गया, इन द 4 preceding tax year he was here for a cumulative period of 365 days or more, and in the tax year in India for a cumulative period of 60 days। वो याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। फिर होता था एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज ए, in case of a citizen of India or a member of a crew of an Indian ship who leaves India for the purpose of employment abroad, तो पहले उसको आता है employment abroad, the period of 60 days in condition number 2 supra shall be substituted by 182 days। यही होता था। पहले तो देखना पड़ता था सुपरा का क्या मतलब है और इंफ्रा का क्या मतलब, देखते थे ना डिक्शनरी, ये सुपरा क्या वर्ड है भाई, 60 अब कुछ नहीं। सबसेक्शन 6(3) in case of a citizen of India, A, who is a member of a crew of Indian ship, or B, who leaves India for employment। A word for the purpose of employment नहीं है, for employment, उससे भी इशू बड़ा हुआ है। ये पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग होता है, एम्प्लॉयमेंट तो होगा, अरे आजकल तो वीज़ा ही एम्प्लॉयमेंट का मिलेगा तभी तो वह एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा वो, लेकिन वो पुराना चला। फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया द सेकेंड कंडीशन मेंशन इन 2B सबसेक्शन 2B इज नॉट एप्लीकेबल। क्या जरूरत है कि आपको 60 डेज 360, और जब 182 दिन हो गया तो फिर मतलब ही नहीं है, आपने उसको सब्स्टिट्यूट करा 160 डेज को 182 डेज, और 182 डेज में आ गया तो फिर सेकंड कंडीशन की क्या जरूरत थी। सो उन्होंने सेक दिया 2B इज सबसेक्शन 2B इज नॉट एप्लीकेबल। सिंप्लीफाई, अच्छा किया,
अच्छा किया है कि वो एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर होता था अगला, in case of a citizen of India or a person of Indian origin who is outside India who comes to India for a visit, the period of 60 days in condition number 2 supra shall be substituted by 182 days. फिर लिखते थे provided that in case of a citizen of India who has total income more than 15 lakh, the period of 60 days in condition number 2 supra shall be substituted by 120 days. यही होता था सर। कितना मुश्किल लगता था, बड़ा आसान कर दिया। Subsection 4. In case of a citizen of India or a person of India who makes a visit to India, who is outside India makes a visit to India, condition 2B will not be applicable. वही 2B 182 दिन will not be applicable. Simplify हो गया। लेकिन अगला देना था 120 दिन तो नीचे लिख दिया next subsection. In case of a citizen whose total income is more than 15 lakh, the period of 60 days in condition number 2B shall be substituted by 120 days. वहाँ सिर्फ इधर है, बाकी वो क्लियर कर दिया है। कहा आपको देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करा, लेंथ बढ़ गई। अब अगला था इंडिविजुअल, फिर वो डीम्ड रेजिडेंट 61A आया था, 61A डीम्ड रेजिडेंट आया था। उसके बाद ये भी आया था कि वो डीम्ड रेजिडेंट अगर वो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है 61 की तो वो नहीं माना जाएगा, वही डाला है। इन केस ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन दैट ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, his income, he is not liable to tax in a foreign country and his total income exceeds 15,000. यही है, ये तीनों लिख दिया। He shall be treated as deemed resident. और फिर अगला लिख दिया, however if he satisfied the condition of 62 and 62 के सारी जो condition और with subsections also 2, 3, 4, 5, then he will not be covered under this section. क्लियर कर दिया सर, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ में आ जाएगा। 69 आ गया HUF फर्म वगैरह, वही HUF फर्म इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, सेट टू बी नहीं है, इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज होली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, होली और पार्टी होली कंट्रोल्ड। कंपनी सेट टू बी होता था, कंपनी इज रेजिडेंट इंडिया इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और ए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। उसके आगे प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट को बता दिया। फिर लिख दिया एनी अदर पर्सन, वही है जो 64 होता था वो यहाँ आ गया, वही है। और नॉन रेजिडेंट को, जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, वो लास्ट में आ गया। सो प्लीज नोट, लैंग्वेज सिंप्लीफाइड, ऑब्वियसली ऑल एक्सप्लेनेशन मर्ज्ड इनटू सबसेक्शन, ऑल प्रोविजो मर्ज्ड इनटू सबसेक्शन। ऑब्वियसली बढ़ जाना था, कोई फर्क नहीं है, आपको कोई चेंज नहीं की, कहीं भी नहीं है। इन्होंने कोई चेंज करने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि ये लॉ बनेगा उसके बाद लाना है तो लाइए ना चेंजेस। इवन माइनर की इनकम 1500 माफ डिडक्शन मिलती थी, 1500 एग्जेम्पशन, अभी भी 1500 ही है, वो चेंज नहीं किया है, कोई चेंज नहीं है, नथिंग। दे डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। क्यों नहीं किया? कि भाई अब ये आ गया है, एक बार एज इट इज ले लो। मैं तो बड़ा मानता था कि ये ओल्ड रिजीम खत्म कर देंगे, नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, मुझे नहीं पता। मैं तो कहा था, मैंने पहले तो ये पूछा था, बहुत दिन 2-3 साल पहले की बात है सर, मैं गया था तो लेक्चर दिया डिपार्टमेंट में, ये अपने सारे कमिश्नर्स वगैरह बैठे, मैंने कहा ये बताइए ये ओल्ड रेजिम ख़त्म क्यों करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू इग्नोर दिया कि नहीं वी विल गो फॉर न्यू रेजिम। मुझे कहने लगा सर एक चीज़ बताएं, बुरा ना माने क्या, जो कोई रिटर्न भरवाने आता है इनकम टैक्स की, उसने टैक्स नहीं दिया, उसे बोलते डाल दे 80C। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? डाल दे 80C, डाल दे, मतलब लिया नहीं है, डाल दे 80D, डाल दे 80E, डाल दे 80G तो कवर हो गया था, 80G, यहाँ तक तो वो 80U भी डलवा देते थे, पर्सनल डिसेबिलिटी वाला। बात समझ रहे हैं? है तो गलत बात है सर, अरे कुछ दिया ही नहीं है, और उसी वजह से अब फॉर्म देख लो 1-4, सारी डिटेल देनी पड़ेगी। पहले 98% केसेस स्क्रूटी में होते ही नहीं थे, तो वो निकल जाते थे, 2% ही थे। नाउ यू रीड द न्यू चेंजेस विच हैज कम, वो मुझे सब गाली दे रहे, आपने शोर मचाया, आपने शोर मचाया, और ये देखिए सब कुछ आ गया। नाउ यू हैव टू गिव द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ऑल दोज 80C 80D वगैरह आ गया ना, नया देखा ना फॉर्म में जो अभी अमेंडमेंट आई है। मैं बहुत कुछ किया सर, तो ये हुआ। फिर मैंने कहता सैलरी वाले बहुत तंग करते हैं, मैंने क्या है, कहते वो HR है जो 70% है बोगस है,
70% HRA बोगस है। कोई भाई को दे रहा है, कोई बहन को दे रहा है, कोई मदर को दे रहा है, मदर को दे रहा है। वो कहते हैं वो आगे टैक्स ही नहीं देते। यहाँ तक अपनी वाइफ को दे रहा है, कहते हैं वो घुसने नहीं देती घर के अंदर, कहते हैं मेरा रेंट दो पहले। और 2 जजमेंट हमारे फेवर में है सर, ट्रिब्यूनल जजमेंट हमारे फेवर में, यू कैन गिव योर रेंट टू योर वाइफ ऑल्सो। कहते ये काम करते हैं। मैं और क्या काम करते हैं? कहते ये सैलरी वाले दान बहुत देते हैं। सिर्फ आप ही ने पॉइंट आउट किया है, ये सैलरी वाले दान बहुत देते हैं, और सिर्फ सैलरी वाले ही देते हैं। हमारे तो सीए वाले माँ कह क्या के थक गए इंस्टीट्यूट, बिनवल फंड को दे दो। कोई देता है? सैलरी वाले दान देते हैं, और सबको पता है। मैंने कहा सर वो कबीरदास लिख गए थे सर। कहते क्या लिख गए थे कबीरदास? मैं कबीरदास ने लिखा था, चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटे और नीर, दान दिए धन न घटे। कह गए भक्त कबीर, कहाँ घटा? वापस ले लिया, और साथ में एग्जाम डिडक्शन भी ले ली, तो धन का घटा बताइए। ये हाल है सर हमारी कंट्री में, कि दान देते हैं, दानी हमारे ऐसे हैं जो पैसे वापस ले लेते हैं। ये पहली बार दानी सुने हमने, और ये होता रहा है। तभी तो मैंने कहा फिर ख़त्म क्यों नहीं किया? ख़त्म कर देते ना। मुझे लगता है 1017 बड़ा तंग कर रहा है। 1017 में है कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस और इकोनॉमिक्स अलाउंस गिवन टू एमएलए और एमपी इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, जो नई रिजीम में नहीं है। नई रिजीम में नहीं है एग्जेम्पशन। लॉ मेकर को कह रहे हो कि हमें ना एग्जेम्पशन हटा देंगे, उसको हटाना पड़ेगा सर ओल्ड रिजीम को। जब कंपनी लॉ सारे नए रिजीम में चले गए, सारे कॉपरेटिव साइड नए रिजीम में चले गए, 80% 90% इंडिविजुअल ऑल्सो दे आर गोइंग टू न्यू रिजीम। 12 लाख हमारी जीडीपी बढ़ गई सर। कोई सोच सकता था 5 मिनट में सारे के सारे अमीर बन गए, सारे 12 लाख में आ गए। हमारे 7 लाख वाले सारे 12 लाख बन गए हैं सर। 7 लाख इज 12 लाख। Am I right or wrong? कितनी अमीरी है सर हमारे यहाँ। कोई अमीर गरीब गरीब रहा? ट्यूशन इनकम, कुकरी क्लासेस, दिस ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ तो इतनी ब्यूटी नहीं है जितने ब्यूटी पार्लर की इनकम दिखाते हैं हम। बात समझ गए सर? सर थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ता है, नहीं तो बोर हो जाएंगे ये लोग। सो ये हालत है, सब अमीर हो गए, सब 12 लाख पे पहुंच गए, और 2 घर के आदमी तो 24 लाख पे पहुंच गए, 3 है तो 36 लाख पे पहुंच गए। सरकार मना नहीं कर रही, सरकार हैप्पी है, 36 लाख पे पहुंच गए। सर मियाँ बीबी कमाते हैं 24 लाख ईच, 48 लाख में सिर्फ 6 लाख टैक्स, 24 में 3 रह गया। ओनली 3 लाख इन 24 लाख। तो क्यों नहीं होगा? जीडीपी अपने आप बढ़ेगी। हमने 3rd ट्रिपल लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी, जीडीपी बढ़ गई हमारी। बढ़ गई क्या नहीं बढ़ गई बताइए आप? आपके क्लाइंट अमीर हो गए क्या नहीं हो गए? हम चाहे वहीं के वहीं रहे, क्योंकि पैसे तो उन्होंने देने नहीं है, लेकिन 12 पे पहुंच गए सब। दे ऑल गॉन अप टू 12 लाख। सो दिस इज गुड थिंग। जीडीपी बढ़ी, पैसा, वाइट के पैसे की कीमत है, नंबर 2 की कोई कीमत नहीं। मैं बता रहा हूँ, नंबर 2 में या आप बिगड़ेंगे या आपके बच्चे बिगड़ेंगे। और बच्चे तो कहने लग गए हमारे से काम नहीं होगा, हम बाहर जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमसे नहीं होगा ये काम। उनको तो आदत पड़ गई है क्रेडिट कार्ड की, प्लास्टिक मनी की, वो कहाँ से ये करेंगे? और हमारे पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं जब सर प्रोजेक्ट इनसाइट बन रहा था तब की बात कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट इनसाइट बन रहा, तो मुझे कहते ही, मैंने कहा ये क्या है प्रोजेक्ट इनसाइट शो में? तो मेरा पैन नंबर लिया, डिटेल, फर्स्ट माय नेम, ये स्क्रीन बिगिन, सेकंड में कितना टैक्स ड्यू है, कितना आउटस्टैंडिंग, कितना पेबल है, कितना रिफंडेबल है, कितने 143 में SS1 में हुआ है, 143 हुआ है, 144 हुआ है, 140, एवरीथिंग वाज देयर। 3rd, मेरी FDR जितनी भी इंडिया में हैं सबकी डिटेल थी। मैंने कहा व्हाट अबाउट दैट जिसमें TDS नहीं कटा? कहता वो 206AA में सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो वो अगला, मेरे कितने म्यूचुअल फंड हैं? 7 म्यूचुअल फंड दिखाए। मेरे तो 6 हैं, कि हमारे पास तो 7 हैं। मैंने कहा जरा नोट कर लूँ? कहते लिख लीजिए। मैंने एक म्यूचुअल फंड लिखा UTI 2,31,000, मेरे को याद नहीं रहा, सोचता रहा, याद आया, ओहो 20 साल पहले एक 10,000 रुपये UTI में जमा कराए थे, किसी ने करवा दिए 10,000 रुपये ग्रोथ स्कीम में करा दिए थे। तो मैंने जब भेजा उसको, 2,31,000 मिले। मैंने कहा थैंक यू इनकम टैक्स।
मैं तो आप लोगों को थैंक यू करता हूँ। एक और जगह भी मैं फंस गया था, वहां पर भी मैंने थैंक यू किया। सर आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। दे हैव मोर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ। एक एक चीज पता है। मेरे क्लाइंट ने जब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मेरा क्लाइंट कहता है, मैंने कहा तुमने 6 करोड़ के शेयर बेचे। व्हाट आर यू टॉकिंग, मेरे पास तो डीपी अकाउंट भी नहीं है। मैं कहा ये क्या है भाई। सर पता नहीं, हो सकता है मेरे बेटे ने साइन करा ली हो, वो डीपी चल रहा है, मेरे को नहीं पता है। अच्छा चलो, मैं तेरे 6 बैंक अकाउंट है। कहता 3 है। मैं कहा ये देख क्या है। कहता आपको पता लग गया। हमारे क्लाइंट ही नहीं हमें बताते थे सर, हम क्या करें, हमें जो बताएंगे हम तो उतना ही करेंगे। अब हमारे पास तो ये आ गया हथियार, हम पहले AIR देखते हैं फिर रिटर्न भरते हैं। आई एम टेलिंग यू, गुड, व्हाट इज ही टॉक अबाउट, वाज ही वर टॉकिंग अबाउट इज करेक्ट। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव विद देम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे गुजराती भाई बहुत जाते हैं बाहर, बहुत जाते हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात वाले जाते हैं, और वहाँ वैट क्रेडिट जरूर लेते हैं। समझ में आ गया, वैट क्रेडिट जरूर लेते हैं। वाइट की मनी का वैट क्रेडिट दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि आपने वाइट क्रेडिट लिया। जो दुबई में इंटेलिजेंस ऑफिसर बैठे हुए, आपको तो पता है क्या इंफॉर्मेशन यहाँ आई। ये जितने प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे वो यही तो कहते थे, अरे पैसे हम इंडिया से ले लेंगे, आप ले लो प्रॉपर्टी, इंडिया से हम कलेक्ट कर लेंगे। सबको नोटिस पहुँच गए ना। मैं सबको कहता अपने क्लाइंट को बता दो, थिंग्स हैव बिकम डिफरेंट। दे नो मच मोर देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। दे नो मच मोर देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। अभी तो पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन और आनी है, मैं बोल नहीं सकता, बट और भी इंक्लूड होगी। कितनी बार आप बाहर गए वो भी आ गया है। सर मेरे को पकड़ लिया 2018 में, कहते आप 8 टाइम्स बार अब्रॉड गए हैं उस साल, 8 टाइम्स। मैंने कहा भाई सुनो, मैं एक बार पैसे खर्चे थे, मैं अपनी बेटी को मिलने गया US से, बाकी तो 7 टाइम आई वेंट फॉर लेक्चर टू वेरियस कंट्रीज। ये कहता वो हमें नहीं पता, स्क्रूटनी आएगी तब बताना कि तुम्हारे ये कहाँ से पैसा खर्च किया। मैं कहा मर गई है तो बात। सो दे न्यू दैट आई हैव ट्रेवल्ड 8 टाइम्स एंड नाउ दे नो इट। सो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अहमदाबाद में खड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रेवल आउटसाइड इंडिया गुजराती भाइयों का होता है, और ग्रुप में जाते हैं कि नहीं जाते। सो जरा ध्यान रखिए, अब पैसे वाइट के काम आएंगे, नंबर 2 के काम नहीं आएंगे। आइए कमिंग बैक सर, वो कहाँ से कहाँ ले गया। सेक्शन 6 होता, सेक्शन 7 वही है, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू रिसीव्ड, सेक्शन 7 डाल दिया। जो सेक्शन 9B होता था, जो नया आया है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन या AOP का डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन, इज नाउ सेक्शन 8। सेक्शन 9 अक्रू और राइज इंडिया वाला जो था और बिजनेस कनेक्शन का, वो जो फंड मैनेजर का भी था वो भी 9A को मर्ज कर दिया, वो ना ए, और वो वही है। बिजनेस कनेक्शन को शेड्यूल 1 में जाकर देखिए, वो डालती है, और 9 वालों का। अब आया सेक्शन 10, जिसे हमें बहुत कुछ पता था, इनकम विच इज एग्जेम्प्ट। अब वो 10 नहीं है। एक सेक्शन था 5A, कम्युनिटी ऑफ पर्सन, those who are living in to whom Portuguese Civil Code Act was applicable। वहाँ पर क्या सिस्टम होता है, गोवा, दमन, दीव वगैरह, पॉर्टुगीज था, जो तो सैलरी कमाते हैं, हस्बैंड सेपरेट, वाइफ सेपरेट, वो सेपरेट रहेगी। बाकी एनी अदर इनकम अर्न्ड बाई देम 50% हस्बैंड की होगी, 50% वाइफ की होगी। वहाँ पर एक सिस्टम है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन, वो 5A को अब 10 कर दिया। किसी को पता नहीं था, कि हमें जरूरत नहीं पड़ती जिनको पर, लेकिन हमें तो लिखना पड़ता, तो पता था कि भाई ये कम्युनिटी ऑफ पर्सन का सिस्टम है। हस्बैंड वाइफ फॉर सैलरी अर्नर सेपरेट, बट फॉर ऑल अदर्स 50 हस्बैंड 50 किसने भी कमाया हो, दोनों का 50-50 होता था। ये था वो। अब सेक्शन 10 तो वहाँ चला गया, अब नाउ इट इज सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 पहले कितना बड़ा था देखो, 11 50 तक था, लेकिन वो 10 50 तक था, 5 थोड़ी था, वो तो कम से कम 80-90 थे। अब क्या करें, सिंप्लीफाई करना है, तो सेक्शन 11(1) इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, द इनकम एन्यूमरेटेड in schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5, schedule 6 will not be included in the total income of that person। कहाँ देखना है, पीछे जाइए, schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5, schedule 6, फिर सब सेक्शन 2 में लिख दिया।
where any of the condition enumerated in those schedule is not satisfied, then it will become chargeable to income tax in that tax year when it is not satisfied. ये लिख दी. और वहाँ शेड्यूल 2 में क्या लिखा है? In case of all assessee, schedule 2, schedule 3, in case of what you call eligible person, schedule 3, in case of non-resident, schedule 4, in case of international financial service center, ये वो schedule 5, सारी डिटेल पीछे दे दी. फिर लिखा in computing the total income of a person, specified person, income enumerated in schedule 7 shall not be included. वो वहाँ पर दे दी. वो specified person जैसे provident fund, regimental fund, ये सारे वहाँ पर डिटेल दे दी. ये सेक्शन 11 को सिंप्लीफाई कर दिया. सब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड टैक्स. सब 11 तो सिर्फ 8 लाइनों का है, 10 लाइनों का, जबकि सारा भार फ्रंट लाइट बैक वेरी हैवी. शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, 7 सारे आपको देखने पड़ेंगे. फिर आया सेक्शन 13A पॉलिटिकल पार्टी, 13B क्या था? इलेक्टोरल ट्रस्ट. उसको सेक्शन 11 को उसको 12 दे दिया. दोनों को कंबाइन करके इलेक्टोरल ट्रस्ट और वो एज मेंशन इन शेड्यूल वहाँ डाल दिया. ये हो गया सेक्शन 12. पहले 11 to 13 चैरिटेबल ट्रस्ट का था, वो तो मैंने डाल दिया. वो पीछे ले गए 332 to 355. अब आया सेक्शन 13 हेड्स ऑफ इनकम. वही 5 हेड्स ऑफ इनकम. हेड्स ऑफ इनकम 13 हो गया. 14A वो होता था इनकम एग्जेम्प्ट है और वो उसका एक्सपर्चा नहीं मिलेगा, वो सेक्शन 14 हो गया. 14A नहीं रहा, वो 14 हो गया है. अगला सेक्शन होता था सेक्शन 15, 16, 17 सैलरी. एम आई राइट सर? 15 मीनिंग ऑफ सैलरी, 15 चार्ज ऑफ सैलरी, ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एरियर्स ऑफ सैलरी विल ऑल्सो बी टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव. ये सब वही था. एंड इफ इन केस ऑफ ए फर्म सैलरी विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इट विल बी टैक्सेबल अंडर बिजनेस. वो सब है. 15 का 15 रखा. नेक्स्ट सेक्शन सबको याद होता था 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन. नहीं, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 19 बन गया. वो भी पूरा नहीं बताऊंगा. पहले था सेक्शन 17(1) मीनिंग ऑफ सैलरी, 72 मीनिंग ऑफ परकोजिट, 17(3) मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. अब 16 कर दिया मीनिंग ऑफ सैलरी, 17 कर दिया मीनिंग ऑफ परकोजिट, 18 कर दिया मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, और 19 कर दिया डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी. पहले तो 2 ही डिडक्शन थी, वो एंटरटेनमेंट तो छोड़ दो. एक प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 और 75. अब बहुत है. जो सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन मिलती थी, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, सबको अब पहले सैलरी में ऐड कीजिए, ग्रॉस सैलरी में. अब डिडक्शन लीजिए सेक्शन 19 में. You have to now take the deduction. All type of benefit except HRA, which the employee is getting, retirement benefit, they will all be included in gross salary. And then you will claim deduction under section 19 provided the condition mentioned there are satisfied. सब ये हो गया है. अब हर इनकम जो एम्प्लॉय की एग्जेम्प्ट होती थी 1010, 1010A, 1010AA, 1010B, 1010C, सबको उठाकर 1013A छोड़कर 1013A वो अभी वो अलग रखा है. 4 सब ग्रॉस लीजिए एंड देन क्लेम डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन 19. क्लियर हो गया? और 16 नहीं याद रखना, 19. पर 19 के साथ वो सेक्शन 10 वाले भी यहाँ पर आ गए. क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. और मैं जो सेक्शन बोल रहा हूँ आपको कौन से पता है? गलत भी बोल दूंगा तब कौन सा फर्क पड़ेगा? गलत भी बोल दूंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा? लेकिन अगला है सेक्शन 20 to 25. ये वही हैं जो 22 to 27 होते थे. थोड़ा एक छोटा किया उसमें. 20 वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 21 एनुअल वैल्यू वो 23 होता था. डिडक्शन 22 जो 24 होता था. एरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट नेक्स्ट सेक्टर 20 क्या था? 23. 24 वहाँ 26 होता था को ओनर्स, वो 24 हो गया. एंड 25 इज इंटरप्रिटेशन, वो वहाँ पर 27 होता था और कुछ कहीं और दे रखी थी. सो 25, 22, 25 विद 1 सेक्शन कंबाइन कर दिया. पहले हाउस बिजनेस होता था 28 to 44 DB. नाउ इट इज 26 to 66. पहले 65 सेक्शन थे,
अब 41 सेक्शंस कम कर दिए वो बहुत अच्छा किया, एम्प्लॉय का डिडक्शन एक जगह डाल दिया, अच्छा किया, गुड थिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, एम्प्लॉय का डिडक्शन एक ही जगह डाल दिया, ये बार बार नहीं, कभी 36(1)(3) में जाओ, कभी किधर जाओ, कभी किधर जाओ। जो 37 सेक्शन हम सारे पढ़ते थे वो 34 हो गया, जो 40 ब्रैकेट ए पढ़ते थे 40 वाला वो सेक्शन 35 हो गया, जो 40 कैपिटल ए पढ़ते थे 10,000 वाला वो 36 हो गया, और जो 43 बी पढ़ते थे वो 37 हो गया। ना 43 बी नहीं है, कौन सा है? 37। जो 37 था 34 हो गया। जो हम वो पढ़ते थे टैक्स, वो अकाउंट्स 44AA 62 हो गया, टैक्स ऑडिट 63 हो गया, जो सबको याद रहता था 44AD वो 58 हो गया। पहले होता था 44AD, 44ADA, 44AE, एक ही सेक्शन। फर्स्ट आइटम बिजनेस से प्रोफेशन, अदर बिजनेस अदर देन ट्रांसपोर्ट, सेकंड ट्रांसपोर्ट, वो टेबल में 3 प्रोफेशनल्स, एक ही सेक्शन हो गया 58। पहले वो 44AD, 44ADA, 44AE होता था, वही कंडीशंस हैं, वही सब कुछ है, कोई चेंज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बट लैंग्वेज सिंप्लीफाइड, सेक्शन चेंज्ड, नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज 58, एक ही याद करना है। पहले 44AD भी करते थे, ADA भी करते थे, 44A भी करते थे, वो सब वहां चले गए। 67 to 91 कैपिटल गेन हो गया, कुछ नहीं किया। 45 67, 46 68, 46 से 69, 70 47, 71 47A, 72, सारे वही सेक्शंस हैं, बट नंबरिंग बदल गई। नंबरिंग बदल गई। 50C जो हमें याद रहता था वो 77 हो गया, बदल गया, और कुछ नहीं हुआ है, वो आ गया वो बार वही है। 54 82, 54B 83, 54D 84, 54EC 85, 54F 86, वही है, 86 है। 55A होता था रेफरेंस टू वैल्यूअर, वो आपका 91 कर दिया। पहले से होता था कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 90 कर दिया। सेक्शंस वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन नंबर बदल गए, लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर दी गई, लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर दी जहाँ जहाँ जरूरत थी, बट कैपिटल गेन चैप्टर में चेंज नहीं है। हाँ, वो जो बेकार हो चुके थे वो हटा दिए, जो यूज वाले नहीं थे वो हटा दिए, बट देयर आर ऑल सेक्शंस देयर। हाँ जी, बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं कर, नहीं देखिए क्यों नहीं किया, आप समझिए। उनको ये ला गया था एज इट इज को रीड्राफ्ट कर दो, रीफॉर्मेटिंग कर दो, रीड्राफ्टिंग, रीफॉर्मेटिंग। हाँ, जहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर दो, जहाँ अलग अलग जगह दे रखा है वहाँ इकट्ठा कर दो। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी, कभी ये वाला पढ़ो, कभी वो पढ़ो। अब सिर्फ एक चीज़ पहले पढ़नी है, 223 चैरिटेबल पर्पस, और उसके बाद आपको 332 पे चले जाना है। रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पहले 12, 12A, 12AA, 12AB, 13, वो सब, और 164, 115 BBI, वो 115 DD, सब मिलाकर एक ही चैप्टर बना। और चैप्टर तो नहीं, उसमें सब चैप्टर हैं, बट सब एक ही जगह ले गए, एक ही जगह ले गए, वो ही सब तरीका। अब कंसेप्ट बदल दिया, स्पेसिफाइड इनकम, रेगुलर टैक्सेबल इनकम, रेजिडुअल इनकम, वही स्पेसिफाइड इनकम है जो स्पेसिफाइड वायलेशन से होती थी 30%, और वो 115 BB से होती थी, वही है। लेकिन एक बड़ा खतरनाक काम किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले क्या होता था कि जो एनोनिमस डोनेशन है चैरिटेबल पर्पस के लिए तो अलाउड है ओनली 5% और 1 लाख विच एवर इज मोर, यू नो दैट। आफ्टर दैट इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। वो अभी भी यही है। पहले होता था रिलीजियस पर्पस के लिए, वो पूरा माफ होता था, वो एनोनिमस नहीं होती थी। पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल होता था, वो भी होता था। लेते थे लोग रिलीजियस के नाम पे, खर्च करते थे चैरिटी के नाम पर, वो हटा दिया गया। पता नहीं क्यों हटाया, वो बात की बात है, मैंने आज सवेरे आपसे पूछा था। क्योंकि भगवान के पास तो नंबर 2 का ही दान आता है। भगवान तो हर चीज़ का साथी है हमारा। भगवान को नंबर 1 और नंबर 2 से कोई मतलब नहीं है। जो भक्त जाएगा वो तथास्तु कहेगा उसको, आप मांगेंगे। हाँ,
बोले वो तो पहले से हट गया है, वो तो सर हट गया है, वो तो 1 लाख, वो ये कैपिटेशन यही हुआ करता था सर। नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ सर। हुंडी में तो भगवान के पास तो नंबर 2 का ही दान आता है सर, भगवान पे चोर भी जाता है सर। वो आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए हुए 62 से पहले, पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल, वो क्या करेंगे? जो चैरिटेबल प्योरली चैरिटेबल है वी हैव नो ऑब्जेक्शन, जो प्योरली रिलीजियस है वो तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। लेकिन जो पार्टली 1962 से पहले अलाउड था, लेकिन आपने तो बाद में भी दिए हैं, पार्टली चैरिटेबल पार्टली दिए जा रहे हैं। किस बात का दिए जा रहे हैं जब लाओ ही नहीं अलाउड? चैरिटी में सिर्फ 5% अलाउड है रिलीजियस करना, तो वो तो चैरिटेबल होता है, पार्टली कैसे कह देंगे उसको? ATG 5 कहता है 5% कैन बी स्पेंड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, बाकी 95% शुड बी स्पेंड फॉर चैरिटेबल, वो तो चैरिटेबल माने जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पार्टली चैरिटेबल पार्टली रिलीजियस? 62 से पहले अलाउड थे, लेकिन मैंने तो अभी भी देखा लोग ले रहे हैं, और आप दे रहे हैं, पता नहीं किस बात का दे रहे हैं। हाउ कैन देयर बी पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल? दे शुड आइदर बी चैरिटेबल और दे शुड बी रिलीजियस। चैरिटेबल में 5% खर्च कर दें, हमें कौन मना करता है? लेकिन अभी भी है, अभी भी कईयों ने अप्लाई किया और मिल गया उनको। मैं कहा ये तो गलत है। कहते हैं आप ज़्यादा ही मीन वेख निकालते हैं, मैं क्या बोलूँ। जब लॉ ने 62 के बाद लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट, लिखा है क्लियरली, तो कैसे दे रहे हैं? अब वो वाला पॉइंट आएगा, वो वाला आएगा। लेकिन भगवान को तो सर यही है, भगवान पे तो चोर भी जाता है, चोरी करने जाता है मेरा माल मिल जाए, और वो मिलता है। भगवान तथास्तु करता है, भगवान हर चीज़ का तथास्तु करता है। इवन वो हमारी बहन बेटियां हैं, सोमवार 16 के शर्त व्रत रखती हैं, मेरी शादी करा दे, वो करा देता है। कहता भुगतना तो तूने है, मैंने थोड़ी भुगतना है। कर्मों का फल आपका है, गलत काम करेंगे आप भुगतेंगे, भगवान नहीं भुगतेगा। अच्छा काम करेंगे आपका फल मिलेगा। भगवान के लिए सब भक्त हैं, तो उनको तो आता ही anonymous donation है, and that's why it is exempt. Nobody can touch that. Nobody can touch that. Religious के पास तो होता ही anonymous है। ये तो कहने की जरूरत, गुप्त दान हमने बड़ी दुनिया में सुना हुआ है, हिंदी में तो गुप्त दान ही कहेंगे इसको। So what I'm trying to explain, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी सब ठीक है, कोई ऐसा चेंज नहीं है, छोटी मोटी चेंज है। अरे सर वो भी सारे चेंजेस डाल दिए गए हैं जो फाइनेंस बिल 2025 के थे, सिर्फ वो वाले नहीं डाले जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट जब बिल मूव हो रहा था और वहाँ पर गवर्नमेंट अमेंडमेंट आई, वो नहीं है उसमें, वो डाल देंगे। वो जरे चाहे उसकी सर्च के कितने चेंजेस हुए, और वो चेंजेस नहीं है। बट ऑल अदर चेंजेस विच वर ब्रॉट बाय द फाइनेंस बिल 2025 दे हैव ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस बिल। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है, ओनली वो गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये आया, फिर वो 56, 57, 58, 59 कौन सा था अदर सोर्सेज, अब है 92, 93, 94, 95, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू सर। श्योर सर, श्योर। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, जो सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जब एफएम ने प्रॉमिस किया था, जब इसके बारे में अनाउंस किया था, तो उन्होंने कहा था कि पर्पस क्या है, ल्यूसिड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल। तो वी हैव स्टक टू दैट। दैट इज वाई इवन पॉलिसी चेंजेस विच वर टू बी ब्रॉट वर ब्रॉट थ्रू फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल के अंदर वो बाद में आए। चूंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4-5 दिन का था, इसलिए जो एक्ट में आए थे वो आगे, बाद के अमेंडमेंट नहीं आए बिल के अंदर। एग्जैक्टली। तो इसको आप जब नए बिल को पढ़ रहे हैं तो आप इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए कि जो पर्पस सर हुआ कि नहीं हुआ। पर्पस वाज वेरी सिंपल, टू मेक इट सिंपल, टू मेक इट ल्यूसिड, टू मेक इट इजी टू कंप्रेहेंड। सो वो इनकी बात से आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम फीलिंग दैट पर्पस हैज बीन सर्व्ड। थैंक यू वेरी मच, एंड इट हैज बीन प्लेजर टू लिसन टू यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं ये नहीं कहता कि पर्पस सर्व नहीं हुआ, पर पर्पस ये हुआ कि अभी तक तो वही लॉ है, हम लोगों को क्यों परेशान करेंगे। अब सारा याद है, राकेश जी वहाँ फटाफट सेक्शन बोलते थे,
अब बार बार देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन है, लेकिन ये तो हिस्टोरिकल, इनको तो दिक्कत नहीं है, ये तो अभी पुराने केस चलते ही रहेंगे। हाँ, ये तो कहेंगे जब तक होगे तब तक देखा जाएगा। मेरी हालत देखो राकेश जी, क्या होगा मेरा, कि नया तो मैं पुराना तो बोलता ही नहीं हूँ, तो मैं नया बोलता हूँ। नए में तो सब कुछ बदल गया। बड़ा मुश्किल पड़ेगा सर, बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये तो करा लेंगे, हम लोगों को पड़ेगा। देखिए ना, कब से 148 चेंज हुआ, और ये वो सर्च हुआ, बेड़ा गर्क हुआ है। देखा कितना जो है, आपका काम मिल गया, मेरे को क्या काम मिला, मैं तो मर गया बेचारा। देखिए ना, 148 जब आया, पहले सर्च मिक्स कर दिया, फिर सर्च अलग कर दिया, फिर वो 221 वाला कर दिया, फिर 21 वाला कर दिया। रोज कोर्ट नहीं डिसाइड कर सके, हम क्या डिसाइड करेंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं से पूछा, आस्क एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट 148, मैं नहीं बताऊँगा, बाकी जो मर्जी पूछिए। और ये कहेंगे सिर्फ 148 पूछिए, हम बताएंगे क्या करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास वही चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, हम 68, 69, 69 करते थे ना, वो कौन सा हो गया, 102, 68 है। उसका नाम पहले कैश क्रेडिट था, वैसे कैश क्रेडिट तो नाम ही गलत था, अब अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट कर दिया। 69 जो होता था वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो 103 कर दिया। अब 69A और 69B को मर्ज कर दिया, वो आ गया 70, 5। वो जो होता था आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर 69C, वो 105 आ गया। जो हुंडी वगैरह होता था 106 आ गया। 107 टैक्स लगेगा कौन से रेट पर, वो जो 115 BBE था वो अब 195 हो गया। 115 BBE था ना जो, वो ही 60% प्लस 25% प्लस 4%, नाउ इट इज 195। 108 to 121 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। 120 वही है जो 80A था, 80AB। 80C से लेकर 80U तक 123 से लेकर 154 है। अब 80C में एक मर्ज कर दिया, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन फंड था वो उन्होंने 80CCD में डाला था, दैट इज ब्रॉट टू 80C। नाउ 80C में अगर आप देखिए तो कम से कम 30-35 टाइप की इन्वेस्टमेंट थी जो आपको अलाउड थी। कौन पड़ेगा उसको, डाल दिया लास्ट में, रेफर टू शेड्यूल 14, वहाँ से हटा दिया, सिर्फ लिख दिया 80 से में डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख की, एंड रेफर टू 14। वही है सब 80D, 80DD, वो 80TT और TTB वो मर्ज कर दिए, वो 10,000 और 50,000 वाले वो मर्ज कर दिए, है वही वाले है। वो 153 है, 154 वही डिसेबिलिटी वाला है, 155 86 सेक्शन है, जो 87 है हम खुश होकर पढ़ते हैं, वो 156 हो गया। वही वाला 87 है, वो 156 हो गया। वो जो 269 SS था 185 हो गया, 269 ST था 186 हो गया, 287 हो गया, 29 SU 89 हो गया, 2980, ये सारे सेक्शन बदले। सबसे हम याद रखते थे 139, उसका नाम खतरनाक कर दिया 263। ना 139 इज 263, 263 से डर लगता था, अब 263 139 हो गया। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर 139B था, वो 264 हो गया है, 264। जो रिटर्न टू बी वेरीफाइड 140 था वो 265 हो गया। रिटर्न सेल्फ असेसमेंट 140A था वो 266 हो गया है। जो 140B था अपडेटेड रिटर्न वो 267 हो गया। 142 था 142 सेक्शन वो 268 हो गया। 269 वो वाला सेक्शन है जो 142A था, रेफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। असेसमेंट का सेक्शन जो 143 होता था वो 270 हो गया। जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो 271 हो गया। जो रीअसेसमेंट होती थी वो 277 हो गया। सेक्शंस बदले हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, वही हैं जो पहले थे। लैंग्वेज सिंप्लीफाइड, प्रेजेंटेड इन ए डिफरेंट फैशन। बट अब देखिए, मैंने चैरिटेबल उसका बोला, क्या बोला आपको, वो TDS का जो सैलरी वाला है 392 प्लस एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रोविडेंट फंड वो 392, ऑल अदर 393। 8 पेज 9 पेज का बना दिया।
सारे सेक्शन 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, जो भी आपके सेक्शन थे, H, I, IA, IB, J, सब वहाँ पर है, एक ही सेक्शन। लेकिन एट ए ग्लांस जैसे रेडी रेकर था, वो रेडी रेकर 2 पेज का होता था, ये रेडी रेकर 12 पेज का है, जो सारे वहाँ पर हैं। बट इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ टेबल फॉर्म, टेबल में है और कुछ नहीं। 394 TCS टेबल फॉर्म, वही है, सेम प्रोविजन, नॉट ए सिंगल चेंज इन द प्रोविजन। कोई फिगर चेंज नहीं की है, क्योंकि उन्होंने कहा ये एज इट इज करो, उसके बाद फाइनेंस बिल आएगा, हम उसमें चेंज करते रहेंगे। फाइनेंस बिल अभी भी आएगा, क्योंकि ओल्ड रिजीम है तो वो रेट ऑफ टैक्स तो देने ही पड़ेंगे शेड्यूल में, तो वो देंगे, क्योंकि न्यू रिजीम के टैक्स तो ऑलरेडी दे रखे हैं 115B, BA, BAB, BAC, BAD, ये तो न्यू रिजीम के टैक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। तो हर साल जो टैक्स के रेट आते हैं वो वही आएगा शेड्यूल में। लेकिन इस बार तो तीनों शेड्यूल पार्ट होंगे, उससे अगले साल 2 ही रह जाएंगे, क्योंकि एडवांस टैक्स का भी सेम रेट होगा वो, इसलिए आप देखना चीज़ आए। बट लेट मी टेल यू, देयर नथिंग टू वरी, सारे के सारे वही सेक्शन, वही चीज़ें, बट डिफरेंट वे में प्रिस्क्राइब किए हुए। 536 जरूर याद रखना, ये हर सेक्शन में होता है, 298 भी था। इसे बोलते हैं रिपील एंड सेविंग्स। दिस एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज हेयर बाई रिपील्ड। अब आया सेविंग, सेविंग में 2 पेज भर दिए। कोई नोटिस पहले दिया गया है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई अपील पेंडिंग है, कोई सर्च हो चुकी है, या कुछ भी हो चुका है, उसमें ओल्ड प्रोविजन ही लगेंगे, कोई न्यू प्रोविजन नहीं लगेगा। एनीथिंग विच हैज हैपेंड बिफोर 1 अप्रैल 2026, क्योंकि 26 से आना है, whatever pending assessment, whatever pending cases, whatever pending appeal, whatever notice is issued, they are all valid and the old provisions will apply to them. तो आपको तो कई साल पुराने और नए दोनों याद करने रहेंगे, पुराने भी तो करने रहेंगे, उसका भी याद रखना है, और नए का भी आगे क्या होने वाला है उसका भी याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो होनी। फेसलेस असेसमेंट वही है रेक्टिफिकेशन। अब 277 हो गया जो 154 होता था, 279 हो गया जो 156 होता था। नंबर बदले, कॉन्सेप्ट टेक्स्ट नहीं बदला है। एक्सरसाइज जो करी, क्या जरूरत थी करने की राकेश जी, ये तो बता दो। अब उनके सामने क्या बोलता, आपने इतनी मेहनत करी किस लिए, जब कुछ समझ में हमें आ गया था, और इसलिए ही तो हुआ। और क्या कहेंगे, ए वाले सेक्शन कैपिटल दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे तो है, वो तो आएंगे, आगे आ जाएंगे। हम तो शेर हैं, हम गलतियां निकालेंगे, अब नया सेक्शन डालेंगे, तो वो तो चीज़ें रह गई। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि देखिए, पढ़ना पड़ेगा। जब से फेसलेस आया, पढ़ना तो शुरू कर ही दिया है हमने, जब से फेसलेस आया पढ़ना तो शुरू कर दिया है। लेकिन जो ये बीमारी एआई ने डाल दी है, सर मेरा एक ऑफिस में आदमी करता है, लेके आता, मैं तेरी अंग्रेजी बहुत ही ख़राब है यार, पता नहीं क्या लिखता रहता है। एक दिन आया, सारी मैंने कहा तेरी इंग्लिश बड़ी इंप्रूव हो गई है। कहता जीपीटी को बोलो, मुझे चैट जीपीटी को, मुझे क्या पता, मैंने वहाँ डाल दिया, उसे ठीक कर दिया। तो ये तो हाल है, दिमाग तो अब लगना नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, बिलीव मत करना, बहुत गलतियां हैं। कल उसे पूछो गिरीश ओझा की एज क्या है, वो जवाब देगा, चाहे कोई गलत दे दे। चैट जीपीटी का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज करेक्ट, जो आया वो डाल देगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन ये हमारे जो यंग लोग हैं, इनका क्या होगा, ये तो पढ़ना ही बंद कर देंगे, या जीपीटी वाले, या अभी भी तो यही करते हैं। सर मेरे ज़माने में मुझे आर्टिकल करने गया तो टेलीफोन डायरेक्टरी पकड़ा दी, उस वक्त कैलकुलेटर भी नहीं थे, कहते इसको टोटल करो। मर गया थे 6 GD, कहते 8 के नहीं थे तब। मैं टोटल कर रहा 3-4 दिन, 5वें दिन एक सीनियर आया, क्या कर रहा है, मैं टोटल कर रहा। पागल है, उनको क्या पता टोटल क्या है, तू भी डाल दे जो डालना है, ऑपरेशन में नहीं डालते। ये हमारे सीनियर हमें समझा रहे, अरे क्या कर रहा है, क्योंकि उनको कौन सी फिगर पता है, और टोटल तो है और कैलकुलेटर तो है ही नहीं, इधर एक बार ही कर दे। लेकिन हमें तो आज भी कैलकुलेटर करे, कंप्यूटर करे, एक बार हाथ से जरूर चेक करते हैं। वी आर यूज्ड टू दैट टाइप ऑफ ए थिंग। जब ट्रायल बैलेंस मिलता था, पार्टी होती थी ऑफिस में, ट्रायल बैलेंस मिला दिया, अरे कमाल कर दिया यार, ट्रायल बैलेंस मिला दिया, एक्सपर्ट इन ट्रायल बैलेंस। अब क्या है, तो कुछ भी नहीं है,
ये दिमाग काम नहीं कर रहे अब। उनको 1% निकालना तो भी कैलकुलेटर से निकालेंगे, 10% भी निकालेंगे। यहाँ तो 2.5% को, कोई 7.5% को 2 मिनट में निकाल के सामने रख देंगे, पर उन्होंने तो कैलकुलेटर के बगैर काम ही नहीं करना। सर इससे दिमाग, मैं ये नहीं कह रहा गलत चीज़ है, बहुत चीज़ें आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं अवेलेबल, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल दीज डेज विच वर नॉट अवेलेबल एट अवर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं मानता हूँ, उसको यूज़ करिए ना। ये फेसबुक, ये जो आप सारा दिन वो रील्स देखते रहते हैं, ये क्यों, ये किसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इनका हमारे पास तो टाइम नहीं मिलता रील देखने का या फेसबुक देखने का। मेरा फेसबुक है, 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन एक बार भी रिप्लाई नहीं किया मेरे से होता ही नहीं है। मेरे का कौन, मेरे से जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन है वो भी बना दिया किसी ने। मेरे को ये, मैं यही कह रहा हूँ सर, यंग लड़कों को कह रहा हूँ कि अपना टाइम, हार्ड वर्क, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई लीनियंसी मत लीजिए। हम बहुत हार्ड वर्क करके सीए बने हैं, गलत काम करने के लिए तो बने ही नहीं। जो हो चुका है हो चुका है। 100 चूहे खा के हज को जा चुका हूँ। आपने 99 खाए हैं तो एक और खा लेना, इसके बाद कोई स्कोप नहीं, कोई स्कोप नहीं है। अब आप जो पूछना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट 148, वो इनसे पूछ लेना, पूछिए, और इसके अंदर भी सब कुछ बता दूंगा मैं। हाँ बोलिए। सर वो कुछ गलती है, मेरे को भी मानता हूँ। वो डेटा प्रोसेसिंग तक कर रहे हैं, जबकि डेटा फाइलिंग तक जमा कराया। क्या कर रहे हैं 140B में? अपडेटेड रिटर्न का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं, अप टू द डेट ऑफ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, शुड बी अप टू द डेट ऑफ डिपॉजिट। आई विल चेकअप, ये तो मुझे अभी पता लगा, मैं चेकअप करूँगा। जाता हूँ डिपार्टमेंट में, बंदा बदल गया, नहीं तो मैं अभी तक पहुँच गया होता। वहाँ सुनाई कम होती है, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं, बातें बनाते हैं। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट में भी बहुत चेंजेस मैंने कराई, और ना कराई मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा करा, लेकिन इस साल भी फंस गया। 5 साल का 10 साल कर दिया। मैंने कहा तो 10 साल कर दिया तो ऑटोमेटिक कर दो। तो वो TPL सेक्रेटरी नंबर 1 कहता नो यू विल हैव टू अप्लाई दिस टाइम। हाँ, अगली बार हम 10 साल का इसको आपको दे देंगे, क्योंकि आपको 5 ईयर मिला है। और जिसने लॉ बनाया था, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं, आप जानते हैं उनको, वो कहता नहीं ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, इसको तो ऑटोमेटिक दे देना चाहिए, हमारे पास डेटा है। तो मैंने कहा जी वो तो कह रहे हैं कि नहीं होगा, उसको डांट दिया। तुमने ये क्यों बोला? आपको अप्लाई करना है फॉर, इवन इफ यू आर नॉट कवर्ड, यू आर पेड दिस टाइम, यू विल हैव टू अप्लाई 5 ईयर्स के अंदर 6 महीने से पहले। प्लीज अप्लाई दैट, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वो 10 ईयर का मिलेगा आपको। सो डोंट टेक दैट risk of not applying, thinking that you are not covered because past 2 years your gross receipts less than 5 crore. नहीं करना पड़ेगा। कई चीज़ें अभी तक 54 क्लियर नहीं किया, जो ओल्ड रिजीम और जो इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन में बहुत कुछ में लड़के आया, कर नहीं रहे, डर रहे, कहते वी नेवर वांटेड दिस लॉ, मतलब दे नेवर वांटेड दैट वो इंडेक्सेशन दोबारा ले आओ। और 240 आपने दिलवाई, मतलब हम लोगों ने 240 दिलवाई। अगर वो 400 आ जाती तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे। चलिए, अब कुछ है सर? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, दोबारा बोलिए। प्रीपेड वो कभी जवाब ही नहीं देंगे। जाइए ना आप जाओ के पास, शिफ्ट कर दिया, करवाया, वो सुनते ही नहीं थे CPC वाले, वो करते ही नहीं। अमेंडमेंट 154 कर दो सर, करते ही नहीं थे। नहीं, वो दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है, बट सीधा जाओ ना जी, जाओ के पास। सर आप जाओ के पास, अब 154 होगा, जाओ के पास चला गया। जाओ 20 जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, ये फाओ के पास मत जाओ, वो फाओ है, फेसलेस असेसमेंट ऑफिसर। तो फाओ नहीं, जाओ को पर ऑर्डर दे दिया गया, कुछ उनको भी मिलने जाया करो, इतनी देर हो गई, आज तक मिलते नहीं हो, जाकर जाओ तो सही सर। तो जाइए, वहाँ पर होगा। वो अच्छा किया है उन्होंने, 154 वहाँ जाओ। ठीक है, अपील तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं आप 154 में जान कर ले, इनका काम क्यों देते हैं उनको? अपील का काम। चलिए सर, और पूछिए सर। ऑनलाइन जो है ना CPC वाला, वो दे डोंट रिप्लाई, वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे एज इट इज रह देते। आप जाओ के पास, और जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर को पावर दे दी गई है, मैनुअली करेगा। मैनुअली का मतलब समझ, आपसे कुछ नहीं कहेगा। आप लोग तो चैरिटी वाले हैं, बाकियों का वो कहता है चैरिटी वालों से हमें क्या करना है, हमें तो सबसे करना है। सारे एक्ट में लिखा है, इफ द AO इज सेटिस्फाइड,
इफ़ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, इफ द कमिश्नर अपील इज सेटिस्फाइड, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ठीक है, आप जाइए, वहाँ पर आपका रिलीफ मिल जाएगा। अभी तक CPC कोई जवाब ही नहीं देती है, गलत है, एज इट इज नथिंग। सो दैट इज द ज्वाइंट विच हैज चेंज। हाँ जी, एनीथिंग? हाँ, न्यू regime है, और the new regime will take over how much, sir? 90% of the returns in the next year. देखिए मैं बताता हूँ, अभी तक पार्टनरशिप और AOP की न्यू रिजीम नहीं है क्या? LLP की है न्यू रिजीम? न्यू रिजीम कंपनी की आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की आ गई, इंडिविजुअल आ गया, HUF की आ गई, AOP की आ गई, लेकिन इनकी नहीं आई है। इनकी रिजीम आनी है, क्योंकि 30 का 25 करते हुए डर लगता है, क्योंकि तो 30 ही है ना वहाँ पर। अब वो आपको कम 30 का 25 कर दें और इंडिविजुअल का 30 ही रखे, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनके सामने बोला नहीं, ये न्यू रिजीम पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, LLP में नहीं है, बाकी सब में आ गई। आप न्यू रिजीम में इसलिए जा रहे हैं, 12 माह है, इसलिए नहीं जा रहे कि वो 1.5 लाख का वो कैलकुलेट करके देख लिया आपने, कह रहा है बेकार है ओल्ड रिजीम, नई रिजीम चलो। और आजकल चेकिंग ज़्यादा है, वो अब तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, पूरा। पहले तो वो कोई कागज़ देना नहीं था, तो 98% केसेस निकल गए थे। तो अब आ ही गए, ऑलरेडी 80% रिटर्न्स आई हैं, वो न्यू रिजीम में आई हैं। वो तो आहिस्ता तक खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो रहा है, इन्होंने अभी छेड़ा नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे। अभी तो ओल्ड लॉ को रिप्रोड्यूस कर दिया, रीफॉर्मेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया उसको, और कोई चेंज नहीं की है, कहीं भी चेंज नहीं की है। वही क्लबिंग ऑफ इनकम, अभी भी हस्बैंड वाइफ की इनकम को क्लब करते हैं। अबे क्यों करते हो यार, वो हमसे ज़्यादा कमा रही हैं। पहले तो होता था वो कम कमाती थी बीवियाँ, अब तो बीवियाँ ज़्यादा कमा रही हैं, तो पहले करो, ख़त्म करेंगे। डॉटर इन लॉ केस, अबे क्लबिंग डॉटर इन लॉ में क्या करनी है? डॉटर इन लॉ को तो पढ़ी लिखी आती है, काम पहले ही कर रही होती है, उसकी क्लबिंग का क्या करना है? पहले तो घर की बात होती थी, तो इसलिए वो चेंजेस होंगी सर। ओवर द ईयर्स यू विल फाइंड देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस। दिस वाज नॉट मेंट फॉर एनी चेंज, दिस वाज मेंट फॉर रीफॉर्मेटिंग द लॉ, simplifying the law, language to be changed, British English to English, nothing else has happened. Except छोटी मोटी चेंज कहीं करी, ज़्यादा कुछ नहीं करी। हाँ जी, और पूछिए बोझ। हाँ जी, हैं 536। अरे ये तो ऐसा पढ़ रहा है जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सेक्शन याद है, अनपढ़ के सुना। मैं बताता हूँ क्या है, ये मेरा टेस्ट ले रहा है, देखिए अभी तक। अरे थोड़े दिन तो रुक जा, अभी मुझे कहाँ से N याद लगा, या A भी याद नहीं रहा, N में पहुँच गया, बताओ। वो इफेक्टेड है, इसीलिए कर रहा हूँ। बोलो बोलो क्या लिखा है इनमें? वो कह रहे गलती है, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं झूठ बोलूँ। वो लोग क्या गलती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉ कई चीज़ों में है, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। वो चीज़ आप चिंता नहीं कीजिए, हो जाएगी। नहीं, एक फेवर में हमारे नुकसान कर दिया। आप लिखते थे वेयर देयर इज ए कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था। और कहता वेयर देयर इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो जो डेप्रिशिएबल एसेट में मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते थे और कहते थे 54 हमें मिला, ये मिलना चाहिए डेप्रिशिएबल एसेट का। अब लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वहाँ तो शॉर्ट ही होता है, 50A में शॉर्ट ही होता है, तो पड़ गए ना मुसीबत। लैंग्वेज बदल दी, हम लिखते थे वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, यही था ना। क्योंकि 229 में लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज एसेट विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अ गेन अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग शॉर्ट। 242 में लिखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज एन एसेट विच इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन, अब तो 24 मंथ्स एंड 12 मंथ्स वाला आ गया, ठीक है ना। अब हमने लिख दिया ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म, देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात नहीं करी, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होती थी, विच इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म। लेकिन 50 जो डेप्रिशिएबल एसेट था, उसमें हमें आसाम पेट्रोलियम की वो जजमेंट थी, उससे हमें फ़ायदा मिल जाता था कि आप उसका 54EC भी ये भी ले सकते हो अगर बिजनेस बिल्डिंग है या लैंड बिल्डिंग है। वहाँ चेंज कर दिया, वहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई, इसलिए बी केयरफुल। अब वर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहीं नहीं लिखा है। सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर चुपके से उन्होंने जहाँ डिस्प्यूट का था उसको बदल दिया ताकि आप उसमें फंस जाएं। हम लोगों ने जो जजमेंटें आई जो इनके फेवर में नहीं थी, उन सबको उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दी, ठीक है जी। और पूछे कोई रहा तो, नहीं तो मेरा तो टाइम में 12 बजे, पूरे 12 बजते हैं। चलिए, हाँ
आप रिलीजियस बन जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ कर सकते हो रिलीजियस में, इवन बिजनेस भी कर सकते हो। क्या जरूरत है ये चैरिटेबल वर्ड यूज करना? रिलीजियस करो, रिलीजियस। अभी फिर वाला याद आ रहा है 12A भी, आगे तो बदल जाना है, आगे तो वो 332 हो गया है रजिस्ट्रेशन का। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ATG का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कईयों का एडवाइज़र हूँ, आपका तो चलो आप तो पूछ लेते मेरे से। वहाँ मैं गया एक जगह, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर सिर्फ 10 लाख रुपए ATG के आते हैं और 20 करोड़ रुपया नॉन ATG वाला आता है। ATG रखा हुआ है। मैं क्या कर रहे हो यार, ये ATG करके लिए अपने लिए मुसीबत डाल रहे हो। और आप पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल बने हुए, बंद कर दो ATG को, है ही नहीं ATG तो अपने आप वो नहीं आएगा, 10 लाख ना आए, वो भी देना है देगा, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कुछ भी कर लो, रिलीजियस है कुछ भी कर लो, एवरीथिंग इज अलाउड। जहाँ चैरिटेबल वर्ड यूज़ होता है वहाँ ही एनोनिमस डोनेशन, वहाँ ही भी सारे प्रोविजंस आ जाते हैं। रिलीजियस को कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि वो भी तो यही काम करते हैं। हम भी वहाँ जाते हैं भगवान को, वो भी भगवान को भी करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ बेटर टू बी ए रिलीजियस ट्रस्ट देन टू बी ए पार्टली चैरिटेबल, पार्टली रिलीजियस और ओनली चैरिटेबल। ओनली चैरिटेबल ATG में है ही नहीं है, ज़बरदस्ती ATG लेकर सिर्फ वो CSR के लिए है। वो भी जब ATG जब हट जाएगा, न्यू रिजीम आएगी, अपने आप वो कोई और नया सेक्शन डालेंगे। वाई ATG व्हेन यू आर इन द न्यू रिजीम? You are not allowed any deduction under ATG. Why you go for that? कहा है तो रिलीजियस नहीं हो सकता क्या? रिलीजियस सब कुछ कर सकता है। ऑल एक्टिविटीज आर रिलीजियस एक्टिविटी। आपको रिलीजियस एक बार बन गए, फिर आप योगा कराइए, आप कुछ भी कराइए, सब कुछ अलाउड है। आप लंगर लगाइए, आप कुछ भी करिए, रिलीजियस है सर। और रिलीजियस तो रिलीजन के लिए ही होता है। तो रिलीजन वो कह रहे हैं ना, डिफाइन कोई नहीं करेगा, तो आप करिए। रिलीजियस इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। उसको देखता ही कोई नहीं, देखते ही वो चैरिटेबल की तरफ है। और चैरिटेबल भी कुछ नहीं देखते, एक्चुअल चैरिटी हो रही है। लेकिन ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन, दे डोंट वांट टू कम अंडर चैरिटी, दे वांट टू पे टैक्स। HRD नहीं मान रहा है, हमने तो लिख के दिया था इनको टैक्स लगा दो, एंड दे आर रेडी। सर एग्जिट टैक्स में सारा पैसा उनका चला गया। कल वो कॉलेज बंद करते हैं तो क्या उनका कॉलेज है? कुछ नहीं है। इवन आफ्टर पेइंग एग्जिट टैक्स, इट इज फॉर ए प्रॉपर्टी विच इज पब्लिक एट लार्ज। एक बार डोनेशन दे दिया तो पब्लिक एट लार्ज, तो उनका कॉलेज है ही नहीं, उनका स्कूल है ही नहीं, उनकी यूनिवर्सिटी है ही नहीं। व्हाट आर दे डूइंग? वो कहते हैं इसको बंद करा दो। मैं कहा एग्जिट टैक्स देने के बाद भी इट इज़ नॉट योर्स, इट इज़ इरिवोकेबल ट्रस्ट, इट इज़ द पब्लिक एट लार्ज। इसलिए आपको क्या ज़रूरत है? और कोई वो चैरिटेबल में ही ज़्यादा मुसीबत डालते हैं एग्जिट टैक्स की, रिलीजियस तो चलता ही रहेगा, इसलिए वो करिए। चलिए आगे बोलिए। हाँ और बड़े सवाल पूछ रहे हैं यार। चलिए, और हमारे यहाँ 2 तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, 3 तरह के कहूँगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक दिखाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट कि मेरे को बड़ा कुछ आता है। पता है यार क्या है 150? हाँ ये बोला नहीं, 148 से कनेक्टेड है, इनसे पूछना। मैं नहीं बोलूंगा 147, 148, 149, 151, 150 एंड 152। इसको छोड़ दो मेरी हालत में, मैं नहीं बोलूंगा। ये अथॉरिटी वाला, ये टेक्निकल मिस्टेक निकाल के तो जीतते हैं। ये टेक्निकल मिस्टेक, अथॉरिटी नहीं, ये प्रॉपर वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं जीतने वाला नहीं हूँ, मैं जाता नहीं इनकम टैक्स। क्यों नहीं जाता? मैं जाता हूँ, मेरे से कोई इसलिए हो जाता नहीं, काम ही नहीं करता मेरा कोई। समझ में क्यों? मेरे से किसी की हिम्मत नहीं है, इसलिए कुछ खोलना नहीं है, तो मैं नहीं जाता। हम इनको कहेंगे मेरा ये देख लेना भाई, हम नहीं जाते। मैं नहीं, हाँ जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, उनको लेक्चर देने जाता हूँ, पूरे बजट देने जाता हूँ, लेकिन अदरवाइज नहीं जाता। क्योंकि एक बार गया था सर, बहुत दौर की बात है, 1970 की। मेरा ब्रदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं साथ में बिजनेस देखता था। मैं गया, उन्होंने कहा चल तुमने केस बनाया, चल मेरे साथ। अपने बिजनेस, अपना केस था। उन्होंने ये सवाल पूछा, ये सवाल पूछा, मैंने सारे उसका कहा ये लो, ये लो, ये लो, कोई गलती नहीं निकली। एक में कहता है ये ग्रेचुइटी आपने दी है। मैं कहा ये क्या हुआ? मैं कहा उसने रिजाइन करा, मैंने दी। अलाउड ही नहीं है रिटायरमेंट, वो तो सुपर एनुएशन या डेथ पे अलाउड है, कैसे आपने अलाउड कर दिया? मैं कहा अलाउड है सर। नहीं अलाउड। तो मैंने वहाँ पर किताब पढ़ी थी, वो सर्कुलर था, निकाला, उसके आगे रख दिया, जिसमें लिखा था रिटायरमेंट इंक्लूड एजुकेशन। चुप कर गया। ब्रदर कहता जाइए,
अगले दिन कहता पढ़े लिखे को मेरे पास लाते हो, अब केस नहीं करूंगा तुम्हारा। और मेरे ब्रदर ने कहा तूने क्या बोल दिया? कहना था सर मेरे ख्याल एक सर्कुलर है, आप देख लेना, मैं भी देख लूँगा, मुझे याद आ रहा है कि है। तूने तो उठाकर उसकी बेइज्जती कर दी। बात समझ में आया? कहता ज़्यादा पढ़ा लिखा मत बना कर। तो उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया था। इसलिए बेटर यही है कि अपने तो रहे, और ये मी लॉर्ड, यस लॉर्ड, ये करके करा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं, वो बोल रहा है, रिलीफ दे रहा है, फिर भी बहस किए जा रहे हैं। समझ में आ गया ना कौन है? ऐसे भी तो गलत है ना आदमी। जब वो कह रहा है मैं रिलीफ दे रहा हूँ और फिर भी तो अपनी नॉलेज दिखाओगे तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे बताइए। सो इसके लिए भी एक आर्ट है, और प्रेजेंटेशन और सुनने की ताकत होनी चाहिए, उसको खुश करने की ताकत होनी चाहिए, जो मेरे में नहीं थी, इसलिए आज फंसा पड़ा हूँ। नहीं तो शायद मैं भी इनके साथ कोई बैठा होता। कोई बात नहीं सर, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, हमेशा जब भी आपको सुनते हैं, अभी बात कर रहे थे हम लोग, कि ऐसा लगता है कि घर में ही बैठे हैं, कि सुना ही करे। बट फ़र्क है, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं सर। बाकी तो समझ गए होंगे सर। इट्स वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स on behalf of ICAI Ahmedabad branch and on behalf of all the participants present over here. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to Girish Ahuja sir. He is a towering personality in the world of taxation and a true legend in the CA fraternity. Sir, your presence here today has truly elevated the quality and the value of the event. We are immensely thankful to you for taking out time from your busy schedule, and your presence today has not only enriched our understanding, but also touched our hearts with your humility and wisdom, sir. It is always a learning experience to hear you speak, and today has been no different. You continue to ignite minds, mentor professionals, and shape the future of the profession. We are truly privileged to have the opportunity to listen to you. Thank you once again, sir, for being with us, for guidance, and for always being a beacon of excellence of our profession. Thank you very much.